Hello friend, I am Advocate Gaurav Kumar Gupta and Chartered Accountant and MBA Finance qualified। आज हम सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे मेन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वली फॉर सीए स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाइनल में हैं वो स्टूडेंट्स के लिए वीवीआई टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कौन कौन से सेक्शन है, किस सेक्शन में एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जनरल प्रोविज़न या एनुअल अकाउंट कब बनाया जाता है, एनुअल मीन्स वार्षिक अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम कोई चीज़ का इंफॉर्मेशन जैसे उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फाइलिंग ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न। ये हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये करंट में सीए फाइनल में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बहुत सा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बार बार ये क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम आज ब्रीफ में कुछ बता रहे हैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। जनरल प्रोविज़न री एनुअल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी आर टू बी मेड आउट एज इन अदर टाइप ऑफ कंसर्न, ठीक है, but they have to conform to the legal requirements as required by section 210 of Company Act 1956। thus इस प्रकार the balance sheet of company must be drafted in the form prescribed under part 1 schedule 6। profit and loss account should disclose all informations are required by part 2 of schedule 6। moreover, the term explained in part 3 as required by part 2 schedule 6। moreover, the terms explained part 3 of schedule 6 should be used in the same sense in final accounts। other corporate bodies as bank, insurance company, etc. have to draft their final account in the forms prescribed by the respective statutes। at every annual general meeting, जॉइंट स्टॉक कंपनी में एनुअल जनरल जो मीटिंग होता है अंडर सेक्शन 166 में होता है। अंडर सेक्शन 166 कंप्लीट 1956 में इसको डील किया गया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू ले ए बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बैलेंस शीट अकाउंटिंग ईयर जब एंड होता है तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। In case of the first general meeting, the period shall start from incorporation and shall end on a date preceding the day of meeting by not more than 9 months। 9 महीना से अधिक यह मीटिंग्स नहीं होता। In other case, it shall commence on the day following the day up to which a last account were submitted and shall be closed on a date preceding the date of meeting by not more than 6 months unless extension of date of meeting has been granted by central government or non-compliance। compliance means क्या हो गया, रूल एंड रेगुलेशन। सब्सटेंस ऑफ अ फॉर्म मीन्स क्या हो गया, रूल एंड रेगुलेशन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी पहले क्या चीज़ को चेक करेगी, एग्जिस्टेंस को। मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन देयर इज प्रोविजन फॉर इम्प्रिजनमेंट of 6 months and fine not exceeding some rupees 1000 सेक्शन 200। इसमें इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का होगा, इसमें फ़ाइन नहीं है, सम 1000 रुपये तक एक्सीडिंग नहीं है। देयर पीरियड ऑफ फॉर विच द अकाउंट आर प्रिपेयर above is known as फाइनल ईयर। अकाउंटिंग ईयर विच मे बी मोर या लेस देन 1 clear year but shall not exceeding 80 months where special permission has been granted on behalf of registrar section 210। various type of accounting here is already been discussed in the preceding। the requirement of section 210 quoted below annual account and balance sheet। पहला तो at every annual general meeting of a company in pursuance of section 166 the board of director of the company shall lay before the company
A balance sheet at the end of the period, balance end of the period specifies subsection 3 and a profit and loss account for the period. In the case of company not carrying on business, on profit of income expenditure account shall be led before the company is annual general meeting instead of means और क्या के बदले of a profit loss account or reference profit and loss account. Profit and loss these sections elsewhere in this act shall be constitute. कोई भी एक्ट से तो उसको कंस्टिट्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद हम आते हैं इन रिलेशन टू सच ए कंपनी a reference respectively to the income and expenditure account the excess of income or expenditure. जब मेरा इनकम एक्सपेंडिचर से अधिक होगा तो द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी रिलेटेड इन द केस ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी द पीरियड beginning with the incorporation of the company ending with a day which shall not preceded the day of the meeting by more than 9 months. In the case of any subsequent annual general meeting of a company to the period beginning with the day immediately after the period to which accounts was last submitted ending with the day which shall not precede the day of the meeting by more than 6 months. In case where the extension of time has been granted for holding the meetings under the second proviso subsection 1 of section 166 by more than 6 months, the extension so granted. A 4-point method, the period to which the account aforesaid relates to, we refer to this act as the financial year, adding the being less more than calendar year, but it shall not provide exceeding 15 months. If any person being a director of a company fail to take all reasonable steps to comply with the provision of this section, he shall in respect of मीन्स क्या के संदर्भ में each offence प्रत्येक अपराध being punishable with imprisonment for term which may extend to 6 months. ठीक है. और with fine which may extend 1,000 rupees or with both. Provided any proceeding against a person in respect of offence under this section it shall be defense to prove that competent and reliable persons were charged with the duty of seeing that the provisions of this section were compelled with hand was the imposition and discharged that duty. Provide further that no person shall be sentenced to imprisonment for any such offence unless he was committed willfully. If any persons not being director of a company having been charged by the board of director with the duty of saying that the provision of the section are the compiled means of the rule and regulation which makes default in doing so, he shall in respect of each offence be with fine which extend to the 1,000 rupees or with both. Provide that no person shall be sentenced to imprisonment for any such offence unless it was committed willfully. As already noted, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको बैलेंस शीट में जिसे हम 8 पॉइंट में सेक्शन जॉइंट स्टॉक जब कंपनी बनती है तो उसमें सब सेक्शन 1 हमें सेक्शन 211 ऑफ कंपनी एक्ट रिक्वायर करती है कि एवरी बैलेंस शीट ऑफ कंपनी शैल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. प्रत्येक बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इसलिए बनाती है कि हमें यह जानना चाहती है कि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं. आप ऑडिटर बनते हैं किसी कंपनी के, आप ऑडिटर बनते हैं, सीए फाइनल कर जाते हैं तो आप कंपनी के किसी अंकेक्षण बनते हैं, ऑडिटर बनते हैं. तो ऑडिटर को यह बताना होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो चल रही है वो एवरी बैलेंस शीट उसका ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है. उसको हम सेक्शन 211 में चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर इसको चेक करती है, इसका ऑडिट फाइल करते हैं. ऑडिटिंग में सबसे मेन पॉइंट को हम किस चीज़ को चेक करते हैं? इंटरनल कंट्रोल. यदि मेरा इंटरनल कंट्रोल मजबूत रहेगा तो मेरा अकाउंटिंग सिस्टम सही होगा. अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो मर्केंटाइल बेसिस पे करते हैं. मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी. आप अलग, आपका बिजनेस अलग. बिजनेस को यदि आप कैपिटल में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आपका बिजनेस वहीं पर वाइप आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में सेपरेट लीगल एंटिटी में कहता है कि हमें मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना है. जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम चलता है वो एक्रूअल बेसिस पे चलता है.
मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम पे चलता है। एक कैशियर को ये मालूम नहीं होता है कि बैंक में हम पैसा जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री मार दिया, ठीक है, लेकिन उसी में आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस आ गया। ये सब क्या एडजस्टमेंट है। उस एडजस्टमेंट में जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्शन 211 में ये रिक्वायर्ड करती है इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर को यह पता रहता है कि हमको एडजस्टमेंट कैसे करना है। The central government, however, may give an exemption, may allow modification the requirement of the form certain case. The relevant provision. The central government may be notification official gazette exempt any class of company for compliance with any requirement suitable 6 if it is opinion in necessary grant an exemption in public interest. Any such exemptions may be granted either in unconditionally subject to such conditions as may be specified in the notification. The central government may on the applications with the consent of a board of director of the company by order modify in relation that company any of the profit and loss account purpose adapting them circumstances of the company. Section 211 clause 4 हमें ये डील करता है। For the purpose of section 211 any reference to balance sheet exempted, where exempted means क्या होता है, मुक्त करना, where the context otherwise required shall include notes thereon of documents annexed thereto give information required by company act allowed by this act given the form such notes document subsection 6. Under section 211 and 211 clause 5 the balance sheet and profit and loss account of company shall not be treated not disclosing of true and fair view the state affairs of the company merely by reasons the fact they do not disclose. इसमें क्या होता है कि अंडर सेक्शन 12 में बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कंपनी जब पेपर कर रही है तो उसको वो डिस्क्लोज नहीं करती है, ट्रू एंड फेयर व्यू में उसको पेश नहीं करती है। इस सिचुएशन में इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एनी मैटर विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज बाय द इंश्योरेंस एक्ट 4 ऑफ द, इसमें इंश्योरेंस एक्ट भी के अंतर्गत में यह मैटर को डिस्क्लोज नहीं करती है। अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट एनालिसिस क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। पहले तो हमको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानने के लिए हमको उसका पहला चीज़ फॉर्म और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब तक जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको पूरा तरह से नहीं आएगा आप फॉर्म का बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते हैं और आपका बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बना पाइएगा। इसलिए एज ए ऑडिटर आपको हर एक चीज़, ऑडिटर को कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं, जो अंकेक्षण होते हैं, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसका अंकेक्षण कैसे करते हैं। पहला चीज़ हम उसका किस पार्ट्स को देखते हैं, कंप्लाइंस प्रोसीजर। कंप्लाइंस मीन्स क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। दूसरा होता है परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा होता है सब्सटेंस ऑफ फॉर्म्स, जो कंपनी के हर एक फॉर्म्स को चेक करना, हर एक ऑडिटिंग पार्ट्स को चेक करना, हर एक इंटरनल कंट्रोल को चेक करना, ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट्स होता है। बैलेंस शीट हम एनालिसिस करते हैं। बैलेंस शीट एनालिसिस में क्या करते हैं, कंपनी जानना चाहती है कि ऑडिटर जानना चाहती है, सीए फॉर्म जानना चाहती है, कंपनी यह जानना चाहती है कि मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, उसका एग्जैक्ट एनालिसिस पार्ट्स क्या है, उसको देखते हैं। अब आते हैं हेड द कंपनी इंटर द डेट ऑफ मेट्स लाइबिलिटीज़। फर्स्ट में कंपनी क्या होता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखाती है, सेकेंड में एसेट्स को दिखाती है। अब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करेंट लाइबिलिटीज़। शेयर कैपिटल में क्या होता है, सिक्योर्ड लोन आते हैं, अनसिक्योर्ड लोन आते हैं, करेंट लाइबिलिटीज़, प्रोविजन, करेंट लाइबिलिटी। अब LIC कंपनी में हम खुलवाए, SIP हो गया या शेयर मार्केट हो गए, ये सब क्या है, कैपिटल मार्केट का पार्ट्स हो गए। मनी मार्केट्स के पार्ट्स कौन से हो गए, मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है जो लंबे समय में हमें रिटर्न मिलता है, और मनी मार्केट में क्या जो शॉर्ट टर्म होता है। तो हमको ये देखना है कि जब हम इंश्योरेंस में जो प्रॉफिट कमाते हैं तो शॉर्ट टर्म कमा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कमा रहे हैं। इसके हर एक पार्ट्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना व्यू बताती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी अपनी व्यू बताती है, सीए फॉर्म अपना व्यू बताती है, सबका अपना अपना एक सेपरेट ओपिनियन है। लेकिन हमको जिस फील्ड में बनाना है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाना है, तो हम उसके अनुसार चलेंगे, उसके सेक्शन के अनुसार चलेंगे, उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, उसके सब्सटेंस और फॉर्म को रियलाइज करेंगे। अब आते हैं बैलेंस शीट एनालिसिस में। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में नॉट बीइंग मार्जिनल नोट्स ग्राउंड ऑफ फॉर द इंफॉर्मेशन।
कंपोजिशन, लाइबिलिटीज़ पार्ट में क्या होता है, कंपोजिशन, जॉइंट स्टॉक कंपोजिशन लिखेंगे, नोट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी फाइनल स्टूडेंट्स के लिए शेयर कैपिटल होते क्या है, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस के क्या भूमिका है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी को जानने के लिए आपको एक एक चीज़ को जानना होगा, एक एक कॉम्पोजिशन को जानना चाहिए। जैसे सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है डिवेंचर, लोन इन एडवांस फॉर द बैंक्स, बैंक से आप यदि एडवांस ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन एडवांस फॉर द सब्सिडरी, अदर लोन इन एडवांस, ये सब क्या है, ये लोन क्या, सिक्योर्ड लोन। या कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, इतना आपको पैसा रिकवरी होना ही होना है। लोन फ्रॉम द डायरेक्टर द मीनिंग एजेंट द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरी मैनेजर शुड बी शोन सेपरेटली। लोन का अलग डिपार्टमेंट से, उसको हम आपको बताएंगे लोन्स के क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होते हैं। अब उसके बाद फिक्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन में फिक्स डिपॉजिट आते हैं, अनसिक्योर्ड लोन में लोन इन एडवांस फॉर द सब्सिडरी, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस लोन फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम अदर लोन एंड एडवांस फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर। यदि बैंक से लेते हैं या अन्य से लेते हैं तो ये सब अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं। उसके बाद आपको डिस्कस करेंगे पार्टली सिक्योर्ड होते क्या, फुल्ली सिक्योर्ड होते क्या, माने एक एक बॉडी पार्ट्स को जानना है। ये क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज है। इसी चीज़ को जानने के लिए कंटीजेंट लायबिलिटीज आ गया। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या हुआ, आकस्मिक जो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व आ गया। जैसे हम फुट बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं कंपनी का, तो उसको फुट नोट में हम दिखाते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, लेकिन एज ए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नए जो सीए पास किए उनको एग्जैक्ट बैलेंस शीट नहीं बना पाते, जिस कारण से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर नहीं रहने के कारण वो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते। कंटीजेंट लायबिलिटी को कभी भी हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये हमारे लिए गलत माना जाएगा। इसको जब भी ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है। यह फुट नोट एंड बैलेंस शीट में भी एडेड शोन सेपरेटली, ठीक है। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज ऑफ डेप्ट, इस पर कंपनी जो होगा या डेप्ट के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। अनकॉल्ड लायबिलिटी शेयर पार्टली पेड एरिया ऑफ फिक्स कुमुलेटिव डिविडेंड, जो हमारा फिक्स कुमुलेटिव डिविडेंड होता है उसका जो एरियस होता है बकाया, ये भी कंटीजेंट लायबिलिटीज में आता है। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग एक्सिक्यूटेड ऑन द कैपिटल अकाउंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, जो एस्टिमेटेड अमाउंट जो हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसका भी हम उसको कंटीजेंट लायबिलिटीज में, अदर मनी ऑफ विच भी कंपनी कंटीजेंट लायबिलिटी, जैसे अर्थक्वेक आ गया, प्रोसेक आ गया, ये सभी कंटीजेंट लायबिलिटीज का पार्ट है। हम आपको एक एक पॉइंट्स को अगले वीडियो में डील करेंगे। जॉइंट स्टॉक को बहुत ही डीप में जाएंगे, और इस पहले तो हम इसको ब्रीफ में आज डिस्कस किए हैं, उसको डीप में हम ले जाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और उसका कंपोजिशंस को बताएंगे। गुडविल क्या है, लैंड क्या है, बिल्डिंग क्या है, लीज होल्ड क्या है, रेलवे स्टैंडिंग क्या है, प्लांट एंड मशीनरी होता क्या है, फ्यूचर फिटिंग क्या है, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी होते क्या है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डिजाइंस क्या होता है, लाइव स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, लाइव स्टॉक जो होता है जो जीवित माने के लिए यूज़ कर, जैसे घोड़ा हो गया, हाथी हुआ, उसको हम वाहन के लिए यूज करते हैं, वो मेरे लिए क्या हो गया, लाइव स्टॉक्स हो गया, जिंदा कन्वेंस हो गया, माने हाँ वही चीज़, उसी चीज़ को हम लाइव स्टॉक करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जॉइंट स्टॉक कंपनी को डीप में ले जाएंगे। डेट्स ऑल।